जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। ये मेरी तस्वीर होगी, अब आना शुरू होगी। ठीक है, तस्वीर बड़ी ज़रूरी है, आपको पता है। चलें जी, तो ये लीनियर अलजबरा की क्लास है जी। लीनियर अलजबरा, ये पूरा का पूरा कोर्स इट विल रिवॉल्व अराउंड मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, किन किन जगहों पे क्या क्या एप्लीकेशंस हैं जो सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और उसका मज़ीद थोड़ा बहुत ऑपरेशंस करने से हमें अचीवेबल है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको, या कोई लाइट्स वगैरह बंद करने की ज़रूरत है? ठीक है। सो तीन किस्म के क्वेश्चंस हैं जो बड़े लीनियर अलजबरा में ना बड़े ठीक ठाक किस्म के स्टडी किए जाते हैं। एक क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। यहाँ पे जो A है दैट इज़ अ P बाय Q मैट्रिक्स, जो X है दैट इज़ Q बाय वन वेक्टर, और जो B है दैट इज़ P बाय वन वेक्टर। ठीक है, सवाल ये है कि अगर मैं आपको A प्रोवाइड कर दूं और B प्रोवाइड कर दूं, कैन यू फाइंड आउट X? Can you find out X such that left hand side becomes right hand side? This is the first problem. So problem क्या है, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसका कोड लिखें, या किसी को आपने प्रॉब्लम सॉल्व करके देनी है, ये वाली प्रॉब्लम, और वो कहता है कि यार मुझे इसका कोड लिख के दो, तो वो कोड किस तरह का होगा, उसकी प्रोटोटाइप किस तरह की होगी? यू विल राइट अ फंक्शन f, लेट्स से, सही है, which takes a matrix A and a vector B. Okay, it will be having some implementation, and eventually it will return X such that this X has the property that AX is equal to B. Whatever A the user gives, whatever B the user gives, you have to return X with this property. अगर ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेते हैं, और या आपके पास एक कोड है जो इसको सॉल्व कर लेता है, सो यू आर ऑलमोस्ट डन विद 1/3 ऑफ लीनियर अलजेब्रा। आपको लगेगा कि यार ये प्रॉब्लम इतनी मुश्किल तो है नहीं, तो ये इतना ज़्यादा 1/3 ऑफ लीनियर अलजेब्रा कैसे कवर हो गया इसमें? सो वी विल सी there are details in it, when X is achievable, when it is not. This is not, I mean, हर किस्म के A और B के कॉम्बिनेशन के लिए X हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी हमेशा आप ऐसा X फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करे। समटाइम्स X will not exist. What are those cases? Can we study those cases by studying the matrix A? Can we study those cases by seeing the vector B, and so on? And what are the relationships and stuff and so on? So that whole portion will cover one part of, if I divide linear algebra into 3 parts, this is 1/3 of the linear algebra. Okay? The second part of linear algebra actually deals with this problem. This is very relevant problem to the first problem. In this case, you are given a matrix A, which is again P by Q, and you are demanded to come up with a vector X such that AX is equal to 0. 0 is a P by 1 vector. It is a vector of all zeros. You can think of this as an array of all zeros. सही है? So इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप कोई सोल्यूशन लिखेंगे, लेट मी राइट दैट सोल्यूशन एज G. इट विल टेक अ मैट्रिक्स A, इट विल बी हैविंग सम इम्प्लीमेंटेशन, एंड इवेंचुअली इट विल रिटर्न X such that AX is equal to 0. Clear? This problem is relatively simpler than AX is equal to B problem.
And actually it is a special case of Ax is equal to B. When B is all zeros, the second problem just pops up. But we will see studying this problem independently, yani Ax is equal to B को जब पूरा study कर लिया, then independently focusing on this one special case has a lot of properties, it has a lot of relationships, a lot of things that will be covered here. Clear? Yes? So one problem, 1/3 of the linear algebra. Second problem, maybe this is not complete 1/3 but a good part of linear algebra, studying this. सही है जी? Third problem, which is this, Ax equals lambda x. This is different than earlier two problems. Ax is equal to b, Ax is equal to 0, Ax is equal to lambda x. Again, if you want to write a function which is solution of this problem, the function may have this particular prototype. It is, let me call this function as h. It takes a as an input. It has some implementation, and then it returns lambda as well as x. So this is the first problem that outputs two objects rather than one. Earlier we saw we only need x. Here we need x as well as lambda. Lambda is a number, a scalar. It's just a number, or you can call it 1 by 1 matrix. It's a number. X is a vector, just like before. But here in this particular problem, there is one very strong condition or constraint. A is a square matrix. It's a P by P. जो हमने पहली दो प्रॉब्लम्स देखी हैं, Ax is equal to B, उसमें मैट्रिक्स A किसी भी टाइप का हो सकता है. जो हमने दूसरी प्रॉब्लम देखी, Ax is equal to 0, मैट्रिक्स A किसी भी टाइप का हो सकता है. ये दोनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस एक वेक्टर है x, यानी वेक्टर x सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम नंबर 1, वेक्टर x सॉल्यूशन इज अ प्रॉब्लम नंबर 2. लेकिन ये जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, इसमें सॉल्यूशन एक वेक्टर x भी है और उसके साथ एक नंबर भी रिटर्न होता है, विच वी आर कॉलिंग लैम्डा. ठीक है. और इस नंबर की या इस स्केलर की और इस x की क्या प्रॉपर्टी है? इट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. लेफ्ट हैंड साइड शुड बिकम राइट हैंड साइड. Okay, make sense? And condition on this particular problem, Ax is equal to lambda x. This problem is basically requires matrix A to be square. It cannot be applied on rectangular matrices, जो matrices square नहीं है. ठीक है जी? One way or the other, पूरे linear algebra में हम इन तीन questions को target कर रहे होंगे, या ये. Although we will study a lot of things जो वक्ती तौर पे आपको लग रहा होगा कि why they are related to these kind of problems, but later we will see that they actually do. यानी at the end of the day they relate to one of these. Okay. और एक और problem जो जिसको मैं कहूँगा kind of a heart of most of the data science applications is a problem. Again, I'm writing Ax B, but rather than saying Ax is equal to B, I am saying find out an x such that Ax is as close to B as possible. कई दफ़ा ऐसा होगा कि आपको A मैट्रिक्स ऐसा मिलेगा और उसकी राइट हैंड साइड B ऐसी मिलेगी कि कोई ऐसा x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो Ax और B को इक्वल कर सके. यानी solution will not exist, x will not exist. What can you do in that case? Well, maybe in that particular case we say, okay, give me an x that makes Ax as close as possible to B, even if the left hand side is not exactly equal to the right hand side, it should be as close to the right hand side as possible. So give me an approximate solution.
may not be exact one, but it should be very good solution. Give me that. Sahi hai? And we will see basically this is actually the problem from where data science, you can call it machine learning, or these kind of things. This is one full-fledged basic algorithm that starts from this. Okay? Make sense? Any questions so far? मैं अगर इनके नाम लिख दूँ प्रॉब्लम्स के ऊपर, घबराने की ज़रूरत नहीं है. आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या करने लगे हैं. सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह इन फुल डिटेल. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवरऑल वी विल बी कवरिंग दीज थिंग्स. और जब हम ये वाली ये वाले सिंबल्स लिख के, ये वाली प्रॉब्लम्स लिख के कवर नहीं भी कर रहे होंगे, तब भी हम एक्चुअली यही कवर कर रहे होंगे, यानी वो सारी चीज़ें इसी से रिलेट करेंगे. ठीक है जी? ओके. ये जो पहली प्रॉब्लम है इसको कहते हैं जी लीनियर सिस्टम. और रिक्वायरमेंट ये होती है कि लीनियर सिस्टम अगर आपको गिवन हो, यानी ये लीनियर सिस्टम गिवन है, तो आप उसका सोल्यूशन निकालें. ठीक है? ये भी लीनियर सिस्टम की एक टाइप है. इसको कहते हैं होमोजीनियस लीनियर सिस्टम. होमोजीनियस के पता नहीं क्या स्पेलिंग होते हैं, वो लिख लीजिएगा GN, मुझे नहीं आते. होमोजीनियस लीनियर सिस्टम. सही है? सो इट्स अ लीनियर सिस्टम बट होमोजीनियस. दिस इज आइगन वैल्यू प्रॉब्लम. Very famous problem, eigenvalue problem, and it has a lot to do with computations. यानी बड़े बड़े matrices पे अगर आपने कोई computations करनी हो तो this eigenvalue problem helps a lot, and this is called least squared problem. सही है जी? लेकिन अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स में एक कॉमन चीज़ देखें ना, तो आप एक मैट्रिक्स को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यस? यानी लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप सारी प्रॉब्लम्स की लेफ्ट हैंड साइड देखें, लीनियर सिस्टम को देखें, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम को देखें, आप आइगन वैल्यू प्रॉब्लम को देख लें, या आप दिस इज लीस्ट, या आप लीस्ट स्क्वायर्ड प्रॉब्लम को देख लें, यू आर मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स विद अ वेक्टर. यस? So let's start our discussion by multiplying a matrix with a vector. How can we multiply a matrix with a vector? How many different ways are there? Let's see that. Clear? Any questions? रिकॉर्डिंग हो रही है, इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं कि बड़े सोफिस्टिकेटेड होकर बैठ जाइए. वो आप नहीं आ रहे कैमरे में. आपका कोई सवाल आता है तो पूछे, कोई टाई शाई लगाने की जरूरत नहीं है जी. एनी क्वेश्चंस? नो? ओके. So let's have an example of a matrix. Let's say A 2 1 3 9 1 6 1 3 2 4 2 0 1 minus 1. Let's say this is a matrix A. This is 3 by 4. Let's take an example of X. Can you tell me the entries of X? This is A, this is X. We want to multiply A with X. कोई एंट्री बताएं, 4 एंट्री आएंगी जी. 5, हाँ जी. छोटी बताएं यार. 11 मल्टीप्लिकेशन करनी. 2 7. ऑड नंबर के साथ आपका कोई ख़ास वो मुझे लग रहा है. एनीवेज 3 जी. और लिख लें. अब 3 लिख लिया यार. चलें जी. मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. रूल नंबर 1, या पहला तरीका याद रखें ये मैट्रिक्स है 3 by 4 का, ये मैट्रिक्स है 4 by 1 का. इसके जवाब में जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3 by 1 का बनेगा, यानी उसमें 3 एंट्रियाँ होंगी, 3 एंट्रीज. यस? तो पहली एंट्री क्या आएगी यहाँ पे? पहली एंट्री
पहली entry is basically the dot product of this with x. So what you can do is 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, पहला नंबर पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ, और ये सारी मल्टीप्लिकेशंस आपस में ऐड हो जाएंगी. दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ओके, सो जस्ट राइट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट रो वेक्टर विद x एंड सी व्हाट हैपन्स. इन दिस केस वी हैव, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 into 5 प्लस 1 into 2 प्लस 3 into 7 प्लस 9 into 3. क्या बना यार? 10 और 2 12, 12 और 21 33, है ना? 33 और 27, 33 और 27 60. ठीक है. नाउ चूँकि हमारे पास कलर्स हैं तो आई डोंट यूज़ इट. Second row with x, you take the dot product and this entry will pop up. This is 1 into 5 plus 6 into 2 plus 1 into 7 plus 3 into 3. जी 5 जमा 12 17, 17 और 7 24 और 9 33. So that is 33. Okay. And then finally you go with this one, multiply it, and you get 2 into 5 plus 0 into 2 plus 1 into 7 plus minus 1 into 3. क्या बना जी? 10 जमा 7 मनफी 3, 10 जमा 4 14. दैट्स द रिजल्ट. अब ये आपको पता था, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये बड़ी जनाब ये लो, ये दिस इज समथिंग यू नो ऑलरेडी. ओके, व्हाट यू डू नॉट नो ऑलरेडी इज एक्चुअली आवर फोकस टुडे, एंड दैट इज दिस थिंग. The same multiplication, which is 60, 33, 14, can be achieved in the following way also. You pick the very first column and you pick the very first entry and multiply the first entry with the first column. Okay? Then what you do, you pick the second column, pick the second entry, multiply the second entry with the second column. See. Then what you do, you for example pick the third entry, third column, pick the third entry and do the same stuff. And finally, you pick the fourth column, pick the fourth entry, and do the same stuff. 9, 3, minus 1. And just add them together. You will see you will get the same result. Please, can you do it? करें जी. निकालें जी, कॉपियाँ निकालें. आई नो इट्स वेरी हार्ड बट लाइफ इज़ नॉट सिंपल आइदर. हाँ जी, ये है, यही बात है, यही आ रही हैं चीज़ें. That's a different view of matrix vector multiplication. यानी you already know dot products,
पहली रो का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, फिर दूसरी रो का लें डॉट प्रोडक्ट एंड सो ऑन. You can do that. But this is also good, which says scale the first column with 5, scale the second column with 2, scale the third column with 7, scale the fourth column with 3, and then add them up. So what you do is scale different columns with different numbers, and then add those scaled columns together, and you will get your result, which is a matrix vector multiplication. Make sense? Yes? Now, if I have, let's say, a few vectors, forget about matrix for now. Let's say I have a few vectors, 2, 1, 3, that's a vector. I have another vector, let's say 1, 1, 9. I may have another vector, let's say 6, 2, 9. And I have another vector, let's say 5, 7, 0. Or I can have more vectors, as long as sub vectors के जो number of components हैं वो same है. Let's say, let me call this vector as v1, let me call this vector as v2, let me call this vector as v3, let me call this vector as v4. अच्छा, अभी इस क्लास के अंदर और आगे की कुछ क्लासों के अंदर जब मैं वेक्टर की बात करूँगा तो वेक्टर इज़ एन array of numbers. ठीक है, वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कॉलम फॉर्म भी यूज़ कर सकता हूँ, रो फॉर्म भी यूज़ कर सकता हूँ. अभी तक जब भी मैं वेक्टर की बात करूँगा वो एक अरे होगी, लिस्ट होगी नंबर्स की. लेटर ऑन वी विल सी, जब हम एक्चुअली पढ़ेंगे वेक्टर स्पेसेस को और वेक्टर्स क्या होते हैं, देन आई विल प्रॉपरली डिफाइन व्हाट डू वी मीन बाय वेक्टर ऑब्जेक्ट, वेक्टर होता क्या है. और उस वक्त आप देखेंगे कि एक्चुअली वेक्टर इज़ मच मोर देन जस्ट एन अरे, इट कैन बी ऑलमोस्ट एनीथिंग. सही है, लेकिन तब तक वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन whenever I say a vector, it's an array, and array may have 10 numbers or 7 numbers, it's a one dimensional array. ठीक है, और जब भी मैं वेक्टर को लिखूंगा अरे की सूरत में तो मैं हॉरिजॉन्टल भी लिख सकता हूँ, वर्टिकल आई विल राइट वर्टिकल बिकॉज दैट्स अ स्टैंडर्ड राइटिंग इन द कॉलम फॉर्म. सही है. अच्छा जी, अब ये मेरे पास कुछ वेक्टर्स हैं और मेरे पास कुछ स्केलर्स हैं. बिल्फर्स x1 एक स्केलर है, x1 या अल्फ़ा 1 कह लें आप. अल्फ़ा 1 एक स्केलर है 2, अल्फ़ा 2 एक स्केलर है लेट्स से 7, अल्फ़ा 3 एक स्केलर है लेट्स से 4.9. ये चले मैं 5 सिंप्लिसिटी के लिए, वैसे ही कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है, अल्फ़ा 4 इज़ -2. और मैं करता ये हूँ कि मैं पहले वेक्टर को पहले स्केलर से स्केल करता हूँ, दूसरे वेक्टर को दूसरे स्केलर से स्केल करता हूँ, तीसरे वेक्टर को तीसरे स्केलर से स्केल करता हूँ, और चौथे वेक्टर को इससे स्केल करता हूँ. यस. तो अभी जो चीज़ आपने पहले देखी पिछली स्लाइड के अंदर, आई कैन री राइट दिस होल थिंग एज फॉलोज. आई कैन मेक अ मैट्रिक्स with first column as 2, 1, 3, second column as 1, 1, 9, third column as 6, 2, 9, fourth column as 5, 7, 0, and I can just write the alphas here in the same order, 2, 7, 5, -2. So basically this matrix multiplication indeed is this thing. Make sense? Which results a vector. So matrix से जब vector multiply होता है तो it returns a vector. सही है? So far so good? Yes? नाउ अगर मेरे पास कुछ फैक्टर्स हों और मैं उनको स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, मुख्तलिफ स्केलर से, और स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं उन सारे स्केल्ड वेक्टर्स को ऐड कर दूं, तो इस ऑपरेशन को, ये एक ऑपरेशन मैंने किया ना, मेरे पास कुछ वेक्टर्स आए, मैंने हर वेक्टर को किसी स्केलर से स्केल किया तो वो स्केल्ड वेक्टर हो गया. यस. तो मैंने मुख्तलिफ वेक्टर्स को मुख्तलिफ स्केलर से स्केल कर दिया
और जो स्केल्ड वेक्टर्स जो मेरे पास जितने भी जमा हुए उनको मैंने जमा करके एक वेक्टर बनाया, तो ये एक ऑपरेशन है जो मैंने किया है। इस ऑपरेशन को कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ वेक्टर्स का क्या होता है? अगर मैं आपको कुछ वेक्टर्स दूं 50, 3, 15, लीनियर कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं कि उन वेक्टर्स को आप स्केल करेंगे मुख्तलिफ स्केलर्स के साथ। अगर स्केलर्स, जो भी स्केलर्स आपको गिवन है उन स्केलर्स के साथ आप स्केल करेंगे, तो जो जवाब में एक वेक्टर आएगा, उस जो जवाबी वेक्टर आएगा उसको हम कहेंगे ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इन ओरिजिनल वेक्टर्स का। अगर आप स्केलर्स चेंज कर देंगे, अल्फ़ा 1 की वैल्यू चेंज कर दें, अल्फ़ा 2 की वैल्यू चेंज कर दें, अल्फ़ा 3 की वैल्यू चेंज कर दें, अल्फ़ा 4 की वैल्यू चेंज कर दें, V1, V2, V3, V4 वही रखें, अब मैं जब लीनियर कॉम्बिनेशन लूँगा तो वो इन्हीं वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, लेकिन फ़र्क आएगा क्योंकि स्केलर्स फ़र्क हैं। समझ आ रही है? तो अगर मैं यही चारों वेक्टर्स रखूँ V1, V2, V3, V4 और स्केलर्स को चेंज करता जाऊँ, तो आई कैन जनरेट अ लॉट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज आउट ऑफ दीज वेक्टर्स। मेक सेंस? यस, नो? मेरी बात समझ में आ रही है ना? और दूसरी मज़े की बात, जब आप मैट्रिक्स को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो असल में उस मैट्रिक्स के जो कॉलम्स होते हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जनरेट हो रहा होता है। मैट्रिक्स के कॉलम्स, हर कॉलम एक वेक्टर है ना, तो मैट्रिक्स को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होता है। कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन? वो वेक्टर की एंट्रियां बताएंगी। वेक्टर की एंट्रियां चेंज कर दें, डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, लेकिन वो आएगा उन कॉलम्स का ही, उन्हीं कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा। मेक सेंस? यस, नो? ओके, सो क्वेश्चन, मेरे पास ये कुछ वेक्टर्स हैं 2, 1, 3, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर है 1, 1, 0 और एक वेक्टर है 3, 2, 3। लेट मी कॉल V1, V2, V3, ये 3 वेक्टर्स। ठीक है, सवाल ये है कि कोई आपसे कहता है कि यार मैं ना इन तीनों से ये वेक्टर जनरेट करना चाहता हूँ, मैं V1, V2, V3 को किस तरह मिक्स करूँ, कैसे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लूँ कि आई कैन गेट B। आई वॉन्ट टू जनरेट B आउट ऑफ V1, V2, V3। इसको बिल्कुल ऐसे समझें आपके पास कोई मटेरियल हैं, डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स हैं। V1 इज़ अ मटेरियल, V2 इज़ अ मटेरियल, V3 इज़ अ मटेरियल, और आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं इन मटेरियल्स को यूज़ करते हुए विच इज़ स्पेसिफाइड कि यार ये ऑब्जेक्ट अगर मैं इन तीनों से बनाऊँ तो, एंड नाउ यू आर कंसर्न कि क्या मैं ये बना भी सकता हूँ या नहीं, और अगर बना सकता हूँ तो V1 की कितनी मिकदार हो, V2 की कितनी मिकदार हो, V3 की कितनी मिकदार हो, सो दैट व्हेन आई मिक्स देम टुगेदर आई गेट B। समझ आ रही? सो द क्वेश्चन रियली इज हाउ मच V1, how much V2, how much V3 can make my B। So इसमें V1 गिवन है, V2 गिवन है, V3 गिवन है, इसमें राइट हैंड साइड B गिवन है। द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मिक्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट। समझ आ रही? और अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो बेसिकली क्वेश्चन ये है 2, 1, 3, 1, 1, 0, 3, 2, 3, alpha 1, alpha 2, alpha 3 which is unknown is equal to 159. Can I find out alpha 1, alpha 2, alpha 3 such that left hand side is equal to right hand side?
समझ आ रही बात की? एंड इफ यू रिकॉल द वेरी फर्स्ट स्लाइड, दिस इज बेसिकली द एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर सिस्टम. यू आर गिवन ए, हो सकता है ए आपको एज इट इज मैट्रिक्स की फॉर्म में ना गिवन हो, आपको कोई कहेगा दीज आर बंच ऑफ वेक्टर्स, आई वांट टू मिक्स देम after scaling, I want different contributions and then I want a mixture, but I want a mixture to become B भी given हो और आपसे पूछा जाए how should I mix them, तो वो पूरा देखने से तो ऐसे लग रहा है ना काफ़ी सारे वेक्टर्स हैं, उनकी एक लिस्ट है, एक और वेक्टर है B राइट हैंड साइड, उसकी लिस्ट है. इट इज़ नॉट लुकिंग अ लीनियर सिस्टम, बट इवेंचुअली इट बिकम्स अ लीनियर सिस्टम. सो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सॉल्व दिस. नाउ वी नीड टू नो हाउ टू सॉल्व एनी लीनियर सिस्टम. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कल को कोई और बंदा आता है, वो डिफरेंट वेक्टर्स ले आता है, डिफरेंट राइट हैंड साइड ले आता है, और वो हमें कहता है कि यार सॉल्व, व्हाट शुड बी द सोल्यूशन, हाउ शुड बी सॉल्व. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को पहले हम कोड करते हैं, कोशिश करते हैं हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करने की, यानी अल्फ़ा 1 की कोई वैल्यू लेके, अल्फ़ा 2 की कोई वैल्यू और अल्फ़ा 3 की कोई वैल्यू लेके ट्राई करते हैं रैंडम वैल्यूज़, कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए. सही है, तो ये कोशिश अगर तो आ जाए तो ये बड़ा अच्छा एल्गोरिदम है कि जब भी आए कोई तो हम रैंडम वैल्यूज़ ट्राई करें, कोई एक लग जाएगी जैसे वो. ठीक है, अगर लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो फिर थोड़ा अर्सा और चला लें, अगर नहीं लगी तो चलो कुछ अर्सा और. लेकिन प्रॉब्लम ये हो सकता है सोल्यूशन हो ही ना, और हो सकता है सोल्यूशन हो लेकिन वो हम कभी ट्राई ना करें, क्योंकि रियल नंबर्स है ना, अल्फ़ा 1 कोई रियल नंबर है, अल्फ़ा 2 कोई रियल नंबर है. समझ आ रही? बट लेट्स ट्राई टू कोड दिस प्रॉब्लम फर्स्ट इन अ बैड वे, रैंडम गेसिंग. अल्फ़ा 1 शायद, अल्फ़ा 1 इतना लगा के देख, अल्फ़ा 2 इतना लगा के देख, अल्फ़ा 3 इतना लगा के देख, नहीं सर नहीं आ रहा, लेफ्ट हैंड साइड कुछ आ रही है, राइट कुछ है. अच्छा, अल्फ़ा 2 में 5 जमा करके देख. दिस इज़ वन सोल्यूशन, यू कैन गो इन दैट वे. लेट्स डू दैट सोल्यूशन नाउ. Then there is another solution, which is the actual algorithm, how to solve these kind of systems, how to get to know that they're solvable or not and stuff like that. समझ आ रही? Clear है? Yes, no? Before moving on, मैं just आपको एक और example कोड करता चलूँ. ये एक लाइन है 2x + 3y = 4. आपने अपनी एफएससी की किताब में या दीगर मैथ की बुक्स, जो भी मैथ के कोर्सेज आपने देखे होंगे, उसमें आपने देखा दिस इज़ अ लाइन इन 2 डायमेंशनल स्पेस, लाइन इन XY प्लेन. यस, अच्छा, नाउ यू हैव अनदर लाइन, लेट्स से 5x - y = 3, एंड समबडी आस्क्स यू क्या ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं. समझ आ रही है? यानी वो ये कह रहे हैं कि क्या x और y की कोई ऐसी दो वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करें, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करें. यस, अब ज़रा गौर से देखिए, ये जो पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 5 3 - 1 xy = 4 3. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अतबार से अगर आप डॉट प्रोडक्ट रूल लेके आएँ, वो जो सबसे पहला हमने देखा था, तो पहली रो को अगर पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल, ये पहली इक्वेशन आ जाएगी. यस, दूसरी रो को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करें, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी. तो बेसिकली यू हैव रिटन द 2 इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों पे लाई करता हो, यानी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हों, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करता हो, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करता हो, विच मीन्स द 2 लाइंस इंटरसेक्ट, इज द सेम एज कि क्या इस लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. क्योंकि अगर इस लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है x और y की ऐसी वैल्यूज मौजूद हैं कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, विच मीन्स वही x और y की वैल्यूज इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेंगी, 2 को भी करेंगी. तो again we are end up having a x = b kind of problem. So a solution of a linear system can arise in so many different ways. The hard part is how to code, how to come up with a function f given a, given b, how to come up with x. Make sense? समझ आ रही? क्लियर है? ओके.
सो नमपाई मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराई थी ना, लास्ट कोर्स में थोड़ी सी कराई थी, जब मैंने आपको ख्वाब दिखाए थे कि हम ये कर देंगे वो कर दें वगैरह। एनीवेज, लेट्स राइट अ फंक्शन f, ओके। define f, it takes a and b and it returns x. We have to find x now, okay. A is a matrix, b is a vector and we want to find out x. x के अंदर इंट्रीज हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन, वो सारी इंट्रीज हैं। सही है जी। तो हम करेंगे क्या, फॉर आइटर इन रेंज लेट्स से 10,000 दफ़ा चलाते हैं, x इज इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड a डॉट शेप, ए के कितने कॉलम्स हैं x के अंदर उतने नंबर्स होने चाहिए। सो a डॉट शेप डॉट 1, ठीक है। a डॉट शेप यानी जो मैट्रिक्स 2 डिमेंशनल अरे है a, उसकी शेप क्या है, तो उसकी शेप 2 नंबर्स होंगे, रोज़ एंड कॉलम्स। अगर मैं शेप के अंदर 0 इंडेक्स दूंगा तो दैट मीन्स रोज़, 1 दूंगा तो दैट मीन्स कॉलम्स। तो मैंने x जनरेट किया, x असल में होगा कितना, जितने a के अंदर कॉलम्स हैं ना, x के अंदर उतनी इंट्रीज होंगी ना। मेक सेंस। सो मैंने रैंडमली इनिशलाइज किया, अब मैंने चेक किया इफ a डॉट x इक्वल टू b, अगर तो जो मैंने गेस किया था वो ही सोल्यूशन था, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी। सही है जी। रिटर्न x, अदरवाइज कंटिन्यू रिटर्न नन। अगर आप लूप से बाहर आ गए हैं तो कभी भी नहीं किया तो बस नहीं मिला सोल्यूशन अभी तक। दिस इज रैंडम गैसिंग। मेक सेंस। इसको तरीका इसका एक और भी है, ऐसे करने की बजाय माइनस बी और इसका स्क्वायर ले लें, ये मैंने असल में यही चेक लगाया है कि ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। लिखा ज़रा फ़र्क तरीके से, उसकी वजह ये है कि वो आपको समझ आ रही है कि मैं इंजॉय करता जा रहा हूँ लेक्चर अपना। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? यस नो? सो फार चीज़ें समझ में आ रही हैं? ओके। सो बेसिकली ए एक्स, दिस इज़ अ वेक्टर, b is a vector. I want to know they both are same or not. एक तो तरीका ये कि मैं इक्वल का चेक लगा दूं कंपोनेंट वाइज। दूसरा तरीका ये कि मैं ax, फ़र्ज़ करें ax है 5 3 2 और फ़र्ज़ करें b है 9 1 1 बल फ़र्ज़, तो दोनों इक्वल नहीं है। एक तो ये कि इक्वल का चेक लगा दें, दूसरा ये है कि आप हर एंट्री में से उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री माइनस करें। अगर इक्वल होंगे तो ये सारी 0 0 आ जाएंगी। सही है। तो इस वेक्टर की सारी एंट्रीज का सम ले लें और अगर सम 0 आए तो इसका मतलब ये सेम है। अब इसमें कैच थोड़ा सा ये है कि 5 माइनस 9 जो है ये आ जाएगा -4, ठीक है। और अगर दूसरी एंट्री यहाँ पे होती, यहाँ पे -1 होता बिलफर्स, तो ये एंट्री आ जानी थी 3 + 1 और लेट से ये 2 है तो ये भी 2 होता बिलफर्स, 2 - 2। अब ये एंट्री आनी है -4, ये एंट्री आनी है 4, ये एंट्री आनी है 0। अब सम करेंगे तो टोटल 0 आ जाएगा, हालांकि इक्वल नहीं है। तो अब माइनस करके अगर एंट्रीज़ को डायरेक्ट ऐड करेंगे तो हो सकता है नेगेटिव एंट्रीज़ पॉजिटिव एंट्रीज़ को कैंसिल आउट कर दें, इवेंचुअली जवाब 0 आए और आप कहें सारी एंट्रियाँ इक्वल हैं। इसलिए सम करने से पहले स्क्वायर ले लेते हैं।
स्क्वायर्स को सम करें, अब अगर 0 आता है तो इसका मतलब एंट्रियां इक्वल है। मेक सेंस? दैट्स वन वे ऑफ चेकिंग whether two arrays are same or not. You can apply equal operation, or you can subtract the two arrays, square each subtracted जो भी residual बचता है, and then add them up, and if the result is 0 they are exactly same. That's what I've done. ax minus b subtraction हो गई, ये मैंने पॉइंट वाइज स्क्वायर ले लिया सबका, उनको ऐड कर लिया, इफ दैट इज 0 तो इसका मतलब है कि एंट्रियाँ ए एक्स जो वेक्टर है और जो बी वेक्टर है दे आर सेम। सही है? चलें जी इसको कॉल करते हैं। ए बताएं जी। ए बताएं जी। 2 by 2 कोई ए ले लेते हैं। b इज इक्वल टू एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड। ये ए है, ये बी है, ठीक है। b इज़ अ कॉलम वेक्टर, यहाँ पे लिखा है ऐसे कॉलम वेक्टर, ठीक है। अब हमने ढूंढना है कि क्या a के कॉलम से b बनाया जा सकता है या नहीं, यानी मैं a का पहला कॉलम्स को कितना उसका मिकदार लूँ, a के दूसरे कॉलम की कितनी मिकदार लूँ, सो दैट कि b बन जाए। कैन आई डू दैट? और मैं हरकत ये करता हूँ कि ये फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, विच इज़ काइंड ऑफ, यार ये क्या कर रहे हो, दिस इज सम, बट लेट्स सी। एफ ए बी, सो सी इज इक्वल टू या एक्स इज इक्वल टू एफ ए बी। एक्स देखते हैं अब क्या आया जी, नन, नहीं मिला, ठीक है। ज़्यादा दफ़ा करके देखें, शायद मिल जाए। नहीं मिला, ये मिलना भी नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है। आई मीन इफ़ यू आर लकी तुम फाइंड आउट कर लेंगे, अदरवाइज ये तो सोल्यूशन नहीं है जी, ये तो कोई नहीं है कि ट्राई करते रहो तो शायद। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। समझ आ गई? यस, ओके। लेट मी राइट द, again we have to come up with f, but let me write the function in let me write the problem in more general form, and then we will see what we are going to solve in what way and stuff like that. सही है जी? Okay, so far so good? समझ आ रही है? Okay. ये आपके पास P बाई Q मैट्रिक्स है A, ये इसके अंदर एंट्रीज हैं, ठीक है। आपने फाइंड आउट करना है एक वेक्टर X जिसकी एंट्रीज हैं x1, x2, xq, और आपको राइट हैंड साइड गिवन है b1, b2, bp। This is vector x, this is vector b। सही है? क्लियर है? इस पूरे सिस्टम को अगर मैं इंडिविजुअल इक्वेशंस की फॉर्म में लिखूं, अभी आपने देखा होगा कि ये इंडिविजुअल इक्वेशंस थी और इनको मैंने मैट्रिक्स या लीनियर सिस्टम की फॉर्म में लिख दिया था। तो मैं वापस भी तो जा सकता हूँ कि मेरे पास एक लीनियर सिस्टम गिवन हो और मैं इक्वेशन इंडिविजुअल इक्वेशंस की फॉर्म में उसको लिख दूँ। समझ आ रही? अगर मैं इंडिविजुअल इक्वेशंस की फॉर्म में
We can go from equations to system. We can rewrite equations from the system. सही है? So if I write the first equation, that is this one, a11 x1 plus a12 x2 a1q xq, that is equal to b1. याद रखें, आपको a की सारी वैल्यूज़ पता है और b की सारी वैल्यूज़ पता है, आपने x की वैल्यूज़ निकालनी है. दैट्स द गोल. ठीक है. दूसरी इक्वेशन a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a2q xq is equal to b2, and so on. We will be having p such equations. सही है जी. तो सवाल ये है, क्या x1 x2 और xq की कोई ऐसी वैल्यूज़ मौजूद हैं जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करें, वही वैल्यूज़ इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करें, वही वैल्यूज़ इक्वेशन 3 को, 4 को, इन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें. बिल्कुल ऐसे जैसे ये था. क्या x और y की कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करें, इक्वेशन 2 को भी करें. So you can view a linear system as a set of equations. समझ आ रही? Linear system as a set of equations. और ये सारी equations अगर आप गौर से देखें, they are all linear. पहली equation देखें, this is linear in x. अगर x मेरा variable हो, x1 x2 x2, this is a linear equation. याद है linear equation क्या होती है? वो जो casual किस्म की definition होती है वो ये होती है कि जितने भी variables हों उनकी डिग्री 1 हो, ना 1 से नीचे ना 1 से ऊपर, और जो एक ही और एक टर्म ऐसी होगी जो डिग्री फ्री है, जो राइट हैंड साइड है बी. सही है? इस किस्म की इक्वेशन को लीनियर कहते हैं. ऑल्दो वी विल सी लीनियर इक्वेशन, लीनियरिटी की अच्छी डेफिनेशन है प्रॉपर, वो भी हम देखेंगे, बट दैट्स व्हाट इट एंड्स अप विथ. तो अभी मैं शुरू से बिल्कुल कह रहा था आपको लीनियर सिस्टम. उस वक्त आपके जहन में ये आया तो होगा कि लीनियर क्यों कह रहे हैं. मैट्रिक्स है, एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक और वेक्टर आ रहा है, लीनियर कहाँ से आ गया? आप कहते हैं मैट्रिक्स सिस्टम मेक सेंस. लीनियर सिस्टम, हमें वेयर द टर्म लीनियर कम्स फ्रॉम. उसकी वजह यह है कि जब आप मैट्रिक्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड यू इक्वेट विद अनदर वेक्टर, दैट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स टू सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस. And those linear equations, if you write back in a matrix form, you can write it in a matrix form. Because that matrix form comes from linear equations, that system is called linear. Make sense? Yes, no? Clear है जी? काफ़ी है? पढ़ें और क्या हो गया?